Hello guys, good evening. So far we have learned about four tools: checksheet, Pareto chart, control chart, cause and effect diagram, or we can say Chikawa diagram. So today we will learn about fifth tool, that is about the histogram. There are many people who have seen histogram and Pareto chart, so they get bit confused. So today we will discuss about the histogram, why we use, what is the histogram and how it is differ from with comparison to Pareto. Okay, so without making further delay, let's start. So first we will discuss about what is histogram. So a histogram is a type of bar chart that visualizes the distribution of numerical data. So as I have already told you, it is a kind of bar chart, right? But it is a quite different as compared to bar chart, or we can say uh, Pareto chart. The difference we will understand at next slide. So it groups number into ranges, or the height of the bar indicate how many fall into the each range. So basically it is a two-dimensional chart, whereas Pareto is one-dimensional chart. Okay, there is no correlation between x-axis and y-axis, but in this chart there is correlation. That is why we call it as two-dimensional chart. So it is a powerful quality planning and control tool that help you understand preventive and corrective action. Basically ये आपको हेल्प करेगा प्रिवेंटिव को कंट्रोल एक्शन लेने में बेस्ड ऑन द डिटेल्ड एनालिसिस. You can visualize the issue trend in a depth to understand the scenario of a rejection rate with this chart. So when you have the trend, when you have the clear stats about the rejection, so you can take a better preventive action or control action. So next we will learn about the type of histogram. So there are basically five type of histogram if you see. So the one is bell shaped histogram, bimodal histogram, skewed right histogram, skewed left histogram, or uniform histogram. What is the difference between bell shaped? So bell shaped histogram is that histogram which have one peak in whole. So you can see here there is a one peak. If you see this one, there is a one peak in this chart. So that is why it is bell shaped. Okay, and in bimodal histogram, it has basically two peak. Histogram shows, if you see, there is the example we have took. So there is a class 8 student, 48 students of class 8. The maximum number of students have scored either between 40 to 50 marks or between 60 to 70. So these maximum student, 9 students were obtained 40 to 50 marks, and here 9 students were obtained 60 to 70 marks. So basically bimodal histogram have two peak. Like in bell-shaped histogram there was one peak, but in bimodal histogram there is a two peak. And then how skewed right is histogram is differ. So in this case the peak is shifted toward the right, and in skewed left histogram the peak is shifted towards the left, and in uniform histogram there will be a pattern. Either in this histogram length of all the bar are more or less the same. If peak lower condition and more condition both will be the same, you can see there will be a pattern. If you see high low high low high low, high, each high is equal or each low is equal. So this kind of histogram we can call as uniform. So if we talk about the type of histogram, so there are total five type of histogram. Okay, so now next we will learn about the uses of the histogram. So the first is to easily interpret a large amount of data and identify the pattern. What I have said earlier, to check the trend. What is the trend means in which scenario, in which period
The problem is too much or too less. To make the prediction of process performance and to identify the different cause of quality problem. So for better understanding, we will understand it with the help of the example. Then if we talk about the real life example, so analyzing the distribution of call waiting time in a call center, कि आपने देखा होगा जैसे कई दफ़ा आप कॉल करते हो तो एक पैटर्न रहता है कि मॉर्निंग में कॉल करोगे तो जल्दी लग जाएगा, लंच टाइम में करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगी कस्टमर केयर पे बात करने के लिए, किसी भी कॉल सेंटर पे अगर आप कॉल कर रहे हो तो उस जो वेटिंग पीरियड है उसको एनालाइज करने के लिए जो सबसे बढ़िया चार्ट आपका हो सकता है वो हिस्टोग्राम हो सकता है। एक एक कंडीशन में आप एक एक्सिस पे रखोगे नंबर ऑफ कॉल्स, एक एक्सिस पे रखोगे आप टाइम पीरियड 9 to 10, फॉर एग्जांपल कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी रनिंग 9 to 6, so you can keep that range 9 to 10 और 9 to 11, 2 hourly और 1 hourly एज पर योर फिजिबिलिटी, जो आप जिसके बेस पे आप एनालिसिस करना चाहते हो। तब आप उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि किस टाइम पीरियड में वेटिंग टाइम कॉल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा आ रही है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है। फिर आप जिस जो पीक होगा उस चार्ट का जो भी निकल के आएगा आपका, स्क्यूड राइट हो, स्क्यूड लेफ्ट हो, यूनिफॉर्म हो, बाय मॉडल हो, जो भी हो, तो बेस्ड ऑन पीक यू कैन एनालाइज बेटर कि हाँ भाई इस टाइम फ्रेम को मुझे एनालाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा आने की वजह से वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जा रहा है या कोई और फैक्टर है, क्या है ऐसा रीज़न जिसकी वजह से रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट वेट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जामिनिंग द वेरिएशन इन द डिलीवरी टाइम ऑफ फॉर एन ई कॉमर्स बिजनेस। तो इस तरीके से आप इसको रियल वर्ल्ड में जनरली यूज़ कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं। Then we will talk about the how to use, right? So again इसको यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो उसकी अकरेंस की स्पेसिफिक रेंज टैली चार्ट के थ्रू, जिसमें आप चेक शीट के थ्रू कर लो या कैसे भी कर लो। चेक शीट जनरली अ गुड फॉर्मेट टू रिकॉर्ड द डेटा। देन एनालाइज द डेटा एट हैंड एंड स्प्लिट द डेटा इनटू इंटरवल। जैसे मैंने बोला, वैसे तो आपने चेक शीट इस तरीके से फॉर्म की होगी कि उसमें ऑलरेडी इंटरवल के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इंटरवल के अकॉर्डिंग ही आपका डेटा एनालाइज हो रहा होगा, जस्ट उसको आपको सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है। देन काउंट हाउ मेनी वैल्यू falls into the each bin on the graph, indicate the frequency of occurrence and each bin with the area. Bin means the bar, one bar, right? So now we understand about ki how to make. First we will learn about how to make this chart. Okay, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल शास्त्री जी है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है, जो एनालाइज कर रहे हैं एवरेज स्कोर, और वो एक टीम को फाइनलाइज करना चाहते हैं जिसमें बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो उनके पास डेटा है लास्ट 15 इनिंग्स का। अब नाउ दे हैव टू सेट द बेंचमार्क कि विच बैट्समैन और बैटर्स दे हैव टू चूज फॉर देयर प्लेइंग लेवल, राइट? तो अब डेटा कुछ इस तरीके से है, ये मेरे नंबर ऑफ बैट्समैन है जिनकी 15 इनिंग का डेटा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ऐसे डेटा में एनालाइज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वी डोंट नो कि विच बैटर हैव डन गुड in past 15 innings. So what we can do, we can plot a histogram. So I have summarized this data in a simple form. If you see here, so I have made some ranges. If you see 90 is a worst performance batsman, so I have prepared a range 90 to 190, 190 to 290 in this way. So now let's just make the histogram. हाउ टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा हिस्टोग्राम की तरह दिखने वाला ये चार्ट है, बार चार्ट बेसिकली बोलेंगे। तो अगर आप देखोगे मैंने इसमें क्रिएट किया तो ये बेसिकली इट इज अ पैरेटो, बेसिकली इट लुक लाइक पैरेटो, इट इज नॉट बार, बिकॉज बार इन हिस्टोग्राम
there is no space between both the pins or both the bars, but here is huge space. So what we can do, how to eliminate this space, we can reduce the gap width. Now you can see, now it has been turned into, बार चार्ट. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे 5 बैट्समैन है वो मेरे परफॉर्म कर रहे हैं 590 से 690 के बीच में. अब यहाँ पे आप एक्सिस की बात करोगे तो मैंने बोला था 2 डायमेंशनल एक्सिस कैसे होंगे ये. तो अगर आप देखोगे इस एक्सिस पे आ रही है रेंज, यानी कि बैट्समैन कितने आपका क्या बोलते हैं कितने रन बनाए. तो 500 से 90, 590 से 690, 590 टू 690 जो रन स्कोर किया वो किया 5 बैट्समैन थे, और 490 से 590 स्कोर किया वो 3 बैट्समैन थे. तो अब विद हेल्प ऑफ दिस बार, तो इट इज वेरी इजी फॉर शास्त्री जी टू सेलेक्ट अ बेस्ट बैट्समैन आउट ऑफ द अवेलेबल बैट्समैन. ये इसका बेनिफिट है. अब आप ऐसे ही, मैंने अगर पैरेटो में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने पैरेटो चार्ट मैंने बनाया था उसकी वीडियो पब्लिश कर रखी है चैनल पे, तो जिन भी बंदों ने वो पैरेटो चार्ट देखा होगा, उसमें अगर हमने एक एनालिसिस किया था, टॉप इश्यूज निकाले थे. तो पैरेटो से क्या है, टॉप इश्यूज तो निकाल लोगे आप. लाइक यहाँ पे कि 120 नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है क्या कहते हैं फ्लैटनेस के हैं, फिर 89 डिफेक्ट स्क्रैचेस के हैं. बट अब इसमें आप पैटर्न नहीं निकाल सकते. ये मान लो 120 फॉर एग्जांपल, ये 122 जो नंबर ऑफ डिफेक्ट है ये मेरे होल डे में आए. अब इसको और अगर डीपर जाना है देन यू कैन यूज हिस्टोग्राम. तो अभी हम यहाँ पे इसको हिस्टोग्राम यूज करेंगे. अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ क्या. अब हम फॉर एग्जांपल ये मेरे 122 नंबर ऑफ डिफेक्ट थे फ्लैटनेस के, तो अब इसको एनालाइज करते हैं. सो व्हाट वी डिड, द कंपनी चेंज द स्ट्रेटेजी. व्हाट कंपनी डिड हियर, they basically start to record the data from 2 hourly basis, like 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, is to get the trend ki in which time period the defect ratio is high, so that they can work out to, they can analyze that time period in which the rejection is quite high. तो अब उनके पास एक ट्रेंड उनको मिल जाएगा इसके थ्रू. अब मैं दिखाता हूँ इसको, फिर बना लेते हैं हम, इसमें क्रिएट कर लेते हैं. बार चार्ट हो गया. ओके, उसके बाद अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं बार चार्ट को पैरेटो में. नाउ इट हैज बीन टर्न इनटू पैरेटो. तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे 6 PM से 8 PM का जो रीजन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें सबसे ज्यादा 32 डिफेक्ट अकर हुए. उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है 2 PM टू 4 PM. तो सारे होल शिफ्ट पे काम करने से बेटर पहले मैं एनालाइज करूं कि आखिर इन दो टाइम पीरियड में, सबसे पहले 6 to 8 में ऐसा क्या हुआ, 32 डिफेक्ट जनरेट हुए, फिर 2 to 4 PM में ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्यादा डिफेक्ट जनरेट हुए. तो एक मेरे को क्लू मिल जाएगा, एक मेरे को वे मिल जाएगा टू मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग द रूट कॉज एनालिसिस. तो ये इसका बेनिफिट है. इसमें बाकी आप अगर आपको कुछ करना है, लाइक चार्ट एक्सिस ऐड करना है, तो आप ऐसे एक्सिस ऐड कर सकते हो. अगर मान लो आपको इसमें डेटा लेजेंड ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो आप. नंबर ऑफ डिफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, डेटा टेबल ऐड करनी है, डेटा टेबल भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो. तो रेस्ट यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं और इसका आगे यूज कैसे करेंगे. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ और पैरेटोग्राफ एंड हिस्टोग्राफ. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस शुड रिप्रेजेंट ओनली कॉलम डेटा दैट इन टर्म्स ऑफ numbers, but in Pareto x axis can represent anything, there is no restrictions. Here in histogram the frequency is shown by the area of each rectangle, but here in Pareto height shows the frequency and the width has no significance.
बिट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बल्कि इसमें होता है हिस्टोग्राम में। और अगर आप डिफरेंस देखोगे, हिस्टोग्राम इट शोज द रेक्टेंगल टचिंग ईच अदर, जो बार है वो एक दूसरे को टच हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे टच हो रहा है, बट यहाँ पे बार एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली इसके डिफरेंस है। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। देन हु कैन यूज इट? प्रोसेस इंजीनियर और डेटा एनालिसिस examining the process performance metrics, financial analyst who are analyzing the expenditure pattern or budget variance, and the supply chain manager assessing the supply performance or delivery times. And the benefit will be the benefit to provide the insights into the process performance and variation, enable team to target the area for improvement. वो मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। So it was all about the histogram. So whosoever join this, watching this video first time or come to the across this channel first time, you can subscribe the channel or like the video. अगर किसी के पास कोई कमेंट है, क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन द सेम। अगर कुछ क्वेरी ज़्यादा आपकी बड़ी होगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में क्लियर कर दूंगा। टिल द टाइम, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।